Now here we are for our the second live session on जिंदगी जीने का नाम है. हमने कल भी डिस्कस किया था why we initiated this thing, especially for the suicide prevention, as we are seeing increased rate of suicide, especially during this pandemic. So suicide is obviously always a serious concern, but during this COVID, it is already increased, and we are expecting more and more cases in the near future. So that's why awareness is more important, because suicide is preventable. And we are trying to understand what is the psychology behind the suicide so that we can prevent on the time. That's why now we are here with the second session with Dr. Mudassir Hassan Pandit from Jammu and Kashmir, who will in just a minute. There are so many people. So we have Dr. Mudassir Hassan Pandit. Welcome, sir. Very good evening. Who is from Baramulla, Jammu and Thank you Kashmir, very much. who will enlighten us on the topic of suicidal ideation in children and adolescents, a clinical perspective from Kashmir. So, Dr. Hassan Pandit, definitely no introduction is required, sir, but still, as we are doing a formal session, so here I am with your introduction. Dr. Hassan Pandit is a licensed clinical psychologist and has completed his PhD from Jamia Millia Islamia, New Delhi. He is currently serving as assistant professor in child psychology in Government Medical College, Baramulla, Jammu and Kashmir. Before joining Baramulla Medical College, he has worked in Government Medical College, Srinagar, as consultant clinical psychologist for 4 years. He was an executive member of ISAP in 2014 and 15 as an All India Council member. He has received doctoral fellowship for Indian Council Social Science and Research for the year 2013 to 2015. He has received many awards, which includes Tara Naidu Award from Psychiatry Association, more than 15 research papers published in many national and international journals, and many conferences he attended and presented his research work. And he is also part of the editorial board for many international and national journals. Uh, and there are so many things in his profile. So I would like to request Sir to inaugurate the session with his talk. So we are very thankful to have you as a guest speaker and on such a short notice. So Sir, I would request you to start with your talk. Thank you very much and thank you for giving me time. मेरा नाम डॉक्टर मुदस्सिर है और जो भी सुनने वाले हैं, I personally will prefer to listen more from you, and I seriously wish to have more questions on the topic. I'm thankful to Dr. Shweta Sharma for giving me a chance to be part of this. Actually, having said that, as we all know that WHO has recently published an article by saying that it has basically increased. If we look at a Kashmir perspective of point of view, we were having insurgency time, which basically can be called till जब से COVID हुआ है, suicide was literally very less as compared to the other areas, be it psychiatric illnesses. मगर looking at this particular period of time, so we in Kashmir do have a lot of newspapers which clearly shows that suicide can happen in Kashmir every day, be it within the paramilitary forces or without paramilitary forces. So said that is near about 26%, which is quietly very high. Yeah. And I wish to see that we could basically discuss this particular topic, including what to do basically. And I seriously wish to take opportunity to answer all the questions that we have. And maybe people want to know more about Kashmir and the Kashmir point of view. But in between, we can have a 2G speed in Kashmir. So I will be literally more sorry for all the viewers if something bad happened in between the network area is concerned. Yeah, so guys, I request you all, as you all know, आप लोगों ने अभी कुछ पैंडेमिक के टाइम पे जब आप लोगों ने लॉकडाउन सफर किया, you know all the technical hacks, you suffered all the things, and unfortunately वेली से people हमेशा उनको ये प्रॉब्लम्स इशू करनी पड़ती है, तो थोड़ा बहुत टेक्निकल ग्लिच हमारे सेशन में आएगा, एंड मैं आप सबको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी कोऑपरेटिव हों और सभी पार्टिसिपेट करें. हम बाद में सेशन को शेयर भी करेंगे, अगर कुछ भी मिस आउट होता है या कुछ भी ऐसा रह जाता है, आप चैट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं. I will really appreciate your cooperation towards this. Thank you. Yes, sir, you continue.
So in between, we do have a psychiatric actually survey in Jammu and Kashmir, which was basically done by the Institute of Mental and Neurosciences. जहाँ मैं पहले काम कर रहा था. We call that the Government Psychiatric Disease Hospital, and we call other name is Government Medical College. So to all my friends, I need to make them understand that the Department of Psychiatry अगर in large हम देखेंगे जम्मू कश्मीर में, उस इंस्टीट्यूट का नाम है Institute of Mental and Neurosciences. With the वो जो रिसर्च हुआ था वो बेसिकली हुआ था in collaboration with the MSF, जिनको हम डॉक्टर बगैर सरहद के नाम से जानते हैं. जो रिसर्च हुआ था वो इन कोलैबोरेशन द 3 डिपार्टमेंट्स के साथ हुआ था, जिसमें हम डॉक्टर बगैर सरहद का जो मेन रोल था और इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल न्यूरोसाइंसेज और कश्मीर यूनिवर्सिटी का एक अच्छा खासा रिसर्च पब्लिश हुआ था, और जो शायद मेरे देखने वाले या सारे साइकोलॉजिस्ट लोग अगर कश्मीर में काम करना चाहते हैं रीड कर सकते हैं. तो उसका बेसिक रिसर्च का पर्पज ये था कि देखा जाता है कि डिप्रेशन जो है वो कितना लेवल था. तो प्रोबेबल डिप्रेशन देखा गया था 46%, which is quite seriously very high in the valley. I am talking about the valley part. So जो लोग मतलब जो कश्मीर से बाहर लोग रहते हैं, जम्मू कश्मीर स्टेट कभी विजिट नहीं किए हैं, इसमें दो अभी प्लेसेस अगर आप दो जगहों को कवर करेंगे तो एक यूनियन टेरिटरी बनता है जो जम्मू और कश्मीर को मिला के. तो ये जो रिसर्च हुआ था बेसिकली वो सिर्फ कश्मीर वैली में हुआ था 10 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, और बहुत अच्छे से रिसर्च मतलब जिसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च, अच्छा क्वालिटेटिव रिसर्च बनाया था एमएसएफ ने. और मेरे ख्याल से वो प्रोबेबल 46% डिप्रेशन जो था तब शायद एक अलार्मिंग था, और लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया था कि ये तो हर एक को इंक्लूड कर रहे हैं साइकियाट्रिक इलनेस में. लेकिन उसमें एंजाइटी अगर देखा गया था वो 26% लोगों के अंदर एंजाइटी देखा गया था, या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जो था वो 19% लोगों के अंदर देखा गया था. तो हैविंग सेड दैट, ये जो हम इंसर्जेंस पीरियड से हम लोग अभी तक निकल के आए हैं फ्रॉम 1947 टू दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, तो मेरे ख्याल से शायद लोगों ने लोगों के अंदर वो बहुत जिसको हम बोलते हैं हिंदी में उर्दू में बोलते हैं कुव्वत बर्दाश्त, रेजिलियंस था जिसको हम बोलते हैं, बहुत हायर साइड से था. लेकिन जब से कोविड हुआ है शायद वो रेजिलियंस अब हमें लग रहा है कि शायद एटलीस्ट मिलिटेंसी वाला पावर लोगों ने एक्सेप्ट किया था. लेकिन जो ये कोविड वाला मसला, ये जो पेंडेमिक से शायद लोग बड़े डरे हुए हैं. तभी हर दिन न्यूज़पेपर में, इवन मैं आपको आज बोलूं, जो मैं आज न्यूज़पेपर मॉर्निंग में पढ़ा था तब भी एक न्यूज आया था कि आज एक सुसाइड हुआ है. सेकंड एक न्यूज आया था कि पैरामिलिट्री का सीआरपीएफ की तरफ से भी एक पर्सन ने अपनी जान ले ली. तो इसलिए कश्मीर पॉइंट को डिस्कस करना मेरे ख्याल से शायद आप लोगों ने बहुत अच्छा टॉपिक चुना है. जब आप सवाल पूछेंगे तो हो सकता है ये टॉपिक धीरे धीरे खुल सकता है. जी सर, बिल्कुल, बिकॉज़ इसलिए हमने कश्मीरी पर्सपेक्टिव, मुझे पता था थोड़ा-सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है बिकॉज़ मेनी पीपल अज़्यूम कि नहीं हम अलग से क्यों बात करना चाहते हैं। लेकिन हाँ, कहीं न कहीं सिचुएशन हम सबसे अलग है। कश्मीर में मतलब बहुत सिचुएशंस अलग रही हैं, डिफरेंसेस रहे हैं, चैलेंजेस बहुत डिफरेंट रहे हैं। तो रेट अगर मैं रिसर्च स्टडी थोड़ा-सा सर्च कर रही थी इसके पहले सेशन के पहले, सो व्हाट आई फाउंड कि 0.5% से 26% तक रेंज पहुंचा सुसाइडल केसेस के लिए, स्पेशली इन कश्मीर वैली, विच इज सीरियसली मतलब सरप्राइजिंग है. कहीं ना कहीं हम ध्यान नहीं दे पाते, हमें सिर्फ ये लगता है वॉर चल रहा है, सिर्फ वॉर जोन है. लेकिन वॉर जोन के अलावा सुसाइडल आइडिएशन कितना ज्यादा है, क्या फैक्टर्स हैं जिनके कारण स्पेशली बच्चे, क्योंकि एडोलसेंस से लेके 25 टू 30 इयर्स तक जो ग्राफ जाता है वो चिल्ड्रन एडोलसेंस से लेके बढ़ता हुआ जाता है. इसलिए हमने स्पेसिफिकली इस पे फोकस किया कि व्हाट कुड बी रीजंस बिहाइंड दिस, कि चिल्ड्रन और एडोलसेंस में ये ग्राफ इतना ज्यादा क्यों है. बहुत अच्छा, मतलब मेरे ख्याल से एक पॉइंट चुना है. अब आपने शायद लिटरेचर पॉइंट ऑफ से देखा भी है, और बहुत अच्छी बात है कि डिस्कशन करने से पहले एक वो लिमिट आपको पता होनी चाहिए. क्योंकि आपने पिन पॉइंट किया 19 टू 26, मेरे ख्याल से 16 टू 26 25 लेटेस्ट अभी जो हमारे जो मेन कलाकार लोग हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, उनने मेरे को लेटेस्टली डिस्कस हम चल रहा था एक पॉइंट को लेके. और मैं आपको बता दूं जून के महीने में 8 दिनों में 7 सुसाइड्स हुए हैं. और अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, इट्स मोर देन पर हर दिन एक इंसान. जो WHO का रेट है, WHO कह रहा था कि 40 सेकंड्स में हर एक इंसान शायद सुसाइड करता है. और अगर वो 40 सेकंड्स में अगर देखना है तो शायद हर दिन में एक दो इंसान कश्मीरी कल्चर में खासतौर पे कश्मीर डिवीजन से सुसाइड कर रहा है. देखो श्वेता, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इन लास्ट शायद हमें डिस्कशन करना चाहिए, मतलब वो है कि शायद हम वे भी लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस पॉइंट को लेके कि ये है. मैं पर्सनली मानता हूँ कि स्टिग्मा इतना अटैच है साइकियाट्रिक इलनेसेस को लेके
क्योंकि अमर साइकेट्री में आ रहा है, और शायद हम लोगों को इस बात को बहुत खुल के डिस्कशन करना चाहिए। ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं रेट्स अभी, इसमें मल्टीपल रीजन है, और मल्टीपल रीजन अगर हम देखेंगे, ट्विन ब्रदर ने लेटेस्टली हमारे नॉर्थ कश्मीर में सुसाइड किया, ठीक है। फीमेल्स कॉमन है, तो जो हम अभी लेटर ऑन डिस्कशन में जाएंगे, तरीके अलग अलग है, तरीके जो वे ऑफ सुसाइड है वो बहुत डिफरेंट है सबका, मेल्स का अलग है, फीमेल्स का अलग है, जो हम आगे जाकर डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन अच्छा क्वांटिटी है फीमेल साइड बोथ मेल साइड। इसमें डोमेस्टिक वायलेंस बहुत इंक्रीजिंग हो रहा है। इसमें अगर हम एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मैं देखता हूँ हर दिन मे बी पर डे या ऑल्टरनेट डेज पे हम देखते हैं सेक्सुअल अब्यूज बहुत हायर साइड से है। तो डिस्कस ना क्यों करें? जब तक डिस्कस नहीं करेंगे तो शायद हम शायद अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे कि हम किसी एक सोसाइटी को जो खो चुके हैं विद गन्स, we can lose one more society with the suicide actually, or maybe with the drugs. So that's why I seriously feel very important that we should discuss this particular point in a very lengthy way, in a very detailed way. जी। तो सर आप थोड़ा डिटेल में बता सकते हैं, बिकॉज वी हैव दिस प्लेटफॉर्म फॉर ऑल दिस टॉपिक्स डेफिनेटली, मतलब दिस इज अ जजमेंट फ्री जोन, आप बिल्कुल दिल खोल के बताइए, जिससे बिकॉज बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम बात करते हैं कि समथिंग इज प्रिवेंटेबल, वो प्रिवेंटेबल तब हो सकता है जब उसके बारे में खुल के बात की जाए, डिफरेंट पर्सपेक्टिव समझे जाए, तब जाके हम आगे के सोल्यूशंस पे आ सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम बात करने में ही होल्ड कर जाते हैं। तो आई रिक्वेस्ट यू, अगर आप जितना ओपनली हम ये डिस्कस कर सके कि व्हाट वुड बी रीजन, क्या रीजंस आ रहे हैं, क्या क्यों ऐसा हो रहा है कि इतना रेट, स्पेशली अगर मैं सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर लेके चलूं तो उसमें क्या रीजन हो सकते हैं? मैं खुल के ही बात करना साइकोलॉजिकल बेसिकली प्रेफर पर्सपेक्टिव करूंगा। कैसा है? और हाँ, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव बेसिकली ये है, साइकियाट्रिक इलनेसेस बहुत हायर साइड से है, एंड सीरियसली अगर आप देखेंगे डिप्रेशन बहुत हायर साइड से, और जो लोग डिप्रेशन को मारे या साइकियाट्रिक इलनेस के होते हुए भी साइकियाट्रिस्ट को नहीं दिखाते, या साइकोलॉजिस्ट को नहीं दिखाते, या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को नहीं दिखाते, शायद कहीं ना कहीं उनका इशू इतना सीवियर हो जाता है कि एक दिन अपनी जान ले लेते हैं। ये एक रीजन है, और जो बहुत बड़ा रीजन है साइकियाट्रिक। दूसरा, हमारे कश्मीर वैली में ड्रग्स बहुत सीरियसली बहुत हायर साइड से है। देखिए, अगर हम दिल्ली की बात करेंगे, बॉम्बे की बात करेंगे, गोवा की बात करेंगे, लोगों को इनसाइट है कि हम दारू पीते हैं, गांजा पीते हैं तो एक आध के लिए शॉट पीते हैं, पर यहाँ लोग इसको एक हैबिचुअल तरीके से यूज करना शुरू कर रहे हैं। तो उसके बहुत डिफरेंट रीजन हो सकते हैं। उसका कंफर्ट एक रीजन हो सकता है, उसका ड्रग्स का मल्टीपल लाइक ड्रग्स अवेलेबिलिटी बहुत हायर साइड से है। लेकिन अल्टीमेटली जो मुझे इशू दिख रहा है, ओवरडोजिंग बहुत सारे केसेस है, अनरिपोर्टेड है, बिकॉज पुलिस जब तक एफआईआर कर लेती है, वो पुलिस को शायद फिर बाद में पता चल जाता है कि ओवरडोज हुआ होता है। लेकिन मेरी नजर में बहुत सारे केसेस जो हमारे क्लाइंट्स थे लेटेस्टली हमने देखा लोकल टाउन्स में, लोकल जगहों पे लोग बोल देते हैं कि वो सुसाइड हुआ है इसमें, पर हमको पता रहता है बिकॉज वो हमारे शायद केस देखा हुआ होता है, तो हमें समझ में आ जाता है कि ये ओवरडोज की वजह से है। तो साइकियाट्रिक इलनेसेस हुआ, ड्रग्स अब्यूज कैन बी द मेन रीजन टू मी, बट यस सुसाइड इज एन इम्पल्स बिहेवियर, और उसके पीछे भी मल्टीपल रीजन हैं। उसके पीछे रिलेशनशिप इश्यूज वेरी हायर साइड से है। जो यंग बच्चों के अंदर आप देख रहे हो कि हो रहा है क्लास 12 या क्लास उसके ऊपर थोड़ा सा कॉलेज लेवल पे, वो पहले से उनके पास पर्सनालिटी ट्रेट्स बहुत सीवियर है। शायद हम कोई भी शायद इस बात को नहीं समझेगा, जो मेरे कश्मीरी सुनने वाले भाई हैं उनको शायद समझ में नहीं आ सकता है कि पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या होता है, बिकॉज शायद अभी तक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की अवेलेबिलिटी इतनी हायर साइड पे नहीं थी कि जहाँ पे डिस्कशन हो जाए, जैसे मानस फाउंडेशन डिस्कशन कर रहा है अभी। उनके बॉर्डर लाइन ट्रेट्स बहुत सीरियस हायर साइड से हैं, और जब उनको हायर साइड में होता है, क्या कहते हैं उसको, पर्सनालिटी ट्रेट्स, उसमें वो पर्सनालिटी ट्रेट्स निकल के आते हैं इनके, अल्टीमेटली फिर वो खुदकुशी के बारे में निकल के आ जाते हैं। कश्मीर सोसाइटी में शायद मेरे हिसाब से शायद एक और इशू होता है कि माँ बाप जो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते एक क्रूशियल टाइम पे, जब वो बच्चा सुसाइड के बारे में बोलता है तो वो शायद समझ नहीं पाते, उनको लगता है कि शायद, पर हम जानते हैं जो साइकोलॉजी स्टूडेंट्स या साइकियाट्री पढ़ने वाले लोग, वो ये समझते हैं कि जब भी वो बोलते हैं शायद कहीं ना कहीं हमें वो सीरियस लेना चाहिए। सर एज अ कल्चर अगर मैं देखूं, कल्चर में थोड़ा सा डिफरेंट है। एज अ कल्चर डिफरेंस जो आता है वो पेरेंटिंग में भी दिखाई देता है, और पेरेंटिंग में ये पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट। हेलो, और शायद वो जी दिल्ली के लोगों में शायद पेरेंटिंग का कल्चर इस हिसाब से बहुत सीवियर है, या मॉडर्न सिटी की जब हम बात करते हैं
वहाँ वो बहुत पहले से सीरियस लेते हैं, पर शायद कश्मीर कल्चर में लोग इसमें सीरियसली नहीं पाते हैं। तो मैं क्या आपको हम आज ही का इसके लिए बताता हूँ। प्रिवेंटिव स्टेप क्या ले सकते हैं? जी सर बताइए, आप बताइए, कंटिन्यू कीजिए। मैं आपको आज ही का केस एक बता दूं। पहले सेशन में एक इंसान बच्चे ने बोला कि दैट दिस इज आई एम गोइंग हैव डन दिस, आई विल डू दिस अगेन। एंड मैं आज का ओपीडी की बात बता दूं आपको। मैंने बाप से, उनके पापा से, बिकॉज एज अ फॉर्मेलिटी, एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, आई नीड टू टेक दिस पॉइंट टू द अथॉरिटीज which are in place of my department. So what I did is I thought if I have a discussion with the father and then I will discuss with my authority. He said सर ऐसा क्यों था सीरियस ले रहे इस पॉइंट को लेके, इसने बहुत पहले बार बोला है, 10 बार 15 बार मैं ऐसा कर लूंगा। तो दिस इज आवर माइंडसेट। हम शायद बहुत इसको लाइटली लेते हैं कि मैं खुदकुशी करूंगा, या जो कोई दुखी बैठता अकेला बैठता हम बोलते हैं कि ये ऐसे ही बैठा हुआ है, इसको कोई और प्रॉब्लम है जो वो छुपा रहा है, तो फाइन। वो पीपल डू नॉट टेक इट। बट अ लॉन्ग टाइम साइकियाट्री इन जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारा क्या कहते हैं इसको स्टिग्मा अटैच था, अभी भी है। इट्स नाउ चेंजिंग बिकॉज वी आर डिस्कसिंग इट एंड आई सीरियसली विश दैट दिस विल चेंज few more actually, few more people join, शायद धीरे-धीरे कम होने की कोशिश करते हैं। जी जी सर, तो यहाँ पे अगर एज अ कम्युनिटी हम बात करें कि क्या कुछ ऐसा है, जैसे हम लोग यहाँ पे कम्युनिटी आउटरीच कर रहे हैं, क्या ये पॉसिबिलिटी वहाँ दिखाई देती है आपको कि कम्युनिटी काउंसलिंग, कम्युनिटी आउटरीच हेल्प करेगी अवेयरनेस लाने के लिए, और क्या वेज हो सकते हैं? श्वेता, सीरियसली कश्मीरी कल्चर को जितना मैं जानता हूँ क्लियरली, जब भी हमारे पास तकलीफें आई है ना, we have seen blood, we have seen militancy, we have seen lot of things. जब भी ये तकलीफ बढ़ती है ना, we came together as a society. And this is beautiness of Kashmir, people of Jammu and Kashmir. Fine. I am saying people of Jammu and Kashmir, please mark my words. हम जब भी हमारे एक कन्फाइंड गोल होता है ना, we always take a stand. चाहे वो कुछ भी हमारे साथ अर्थक्वेक हुआ है, फ्लड हुआ है, या हम लोग निकल के आते हैं। अगर जब हम बोल रहे हैं कम्युनिटी के बाद में, जब ये पेंडेमिक हुआ, believe me, a lot of NGOs have really worked very hard in Kashmir Valley. And I am saying that those NGOs are taking this initiative to come in front actually and discussing these issues. And we are discussing it maybe on 2nd of September. But I have seen people discussing. This is not a first program on the suicide prevention, but that was done by locally. So I am seeing people doing a good job. And we as a community, be it psychiatrists, be it clinical psychologists, be it the faculty of clinical psychology, in enhanced or otherwise places, we are available and we are doing this work through social media and other places to make people aware that suicide is a psychiatric illness and there are preventive sources. जो आपने सवाल पूछा, इससे क्या रुकता है? मेरे ख्याल से इसी से रुकता है। Definitely. I will tell, मैं मेरा मानना है, और मैं लोगों को जो भी देख रहे हैं, it can be prevented by discussion. I mean, अगर आप देखेंगे suicidal ideation, अगर आप लिटरेचर पॉइंट ऑफ से देखेंगे, जो भी स्टूडेंट साइकोलॉजी के देख रहे हैं, लिटरेचर में लिखा गया है कि जो भी सुसाइड अटेम्प्ट करने से पहले या कम्युनिकेट करने से पहले फिर उसको काउंसलिंग हो जाती है ना, वो बहुत प्रिवेंट हुए। बहुत बार वो रुके हैं, उन्होंने वो सुसाइड दिमाग से निकल चुका है। Suicide can be prevented by discussing it. The more we discuss it, but the problem is that society में कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं कि अपना वो रोटी रोजी गर्म करने के लिए बात कर रहे हैं। जैसे ड्रग अब्यूज के बारे में पहले बहुत कम्युनिकेट किया गया था कि ये जी अपनी रोटी रोजी कमाने के लिए बात कर रहे हैं। अल्टीमेटली क्या हो गया, ड्रग इतना फैल गया कि I mean you can hardly see any place in Kashmir Valley जहाँ पे ड्रग्स अवेलेबल नहीं है। तो कंसर्न इज इन आवर सोसाइटी। आई सीरियसली फील ये जो बातें हम कर रहे हैं ना, इन्हीं से, ये डिस्कशन से, वर्कशॉप से, by discussing colleges, by discussing schools, by discussing in everywhere places, be it bus थाना, be it नुक्कड़ नाटक, उन्हीं से शायद लोगों को समझ में आ सकता है कि इसके साइड इफेक्ट्स कैसे होते हैं। Definitely, sir. We are also trying in the same line. The other question, sir, जैसे बहुत से लोग इस कंफ्यूजन में रहते हैं, जैसे अभी आपने भी एक हाईलाइट किया कि हाँ, सुसाइड इज अ क्लिनिकल डिसऑर्डर और समथिंग विच कैन बी रिलेटेड क्लिनिकली। हम लोगों को फील्ड में है तो हमें पता है, लेकिन कहीं ना कहीं आम आवाज नहीं आ रही। एक सेकंड प्लीज। नहीं ये कट गया, बेसिकली फोन आया था, सॉरी। अच्छा सर, नो प्रॉब्लम।
अच्छा, तो जैसे आपने भी बोला कि हाँ, सुसाइड एक तरीके से क्लिनिकल कंडीशन है, ये हम लोग बहुत आराम से समझते हैं, लेकिन कहीं न कहीं आम जनता जो है, उनको ऐसा लगता है कि ये सिर्फ़ एक कुछ पल में होने वाली चीज़ है कि आपका दिमाग खराब हुआ, आप किसी इम्पल्स में आए और आपने ये कदम उठा लिया। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बच्चों में और एडोलसेंट्स में ऐसी कौन-सी क्लिनिकल कंडीशन है, लेमन लैंग्वेज में, जिससे कि पेरेंट्स जो हमारे साथ में हैं, जो भी लोग जनरल पॉपुलेशन से हमारे साथ में, वो समझ सकें कि क्या ऐसे क्लिनिकल कंडीशंस हैं जो आगे जाके इस अनफॉर्च्यूनेट कंडीशन को लीड कर सकती है। अगर हम बच्चों में पहले देख ले, जो हुँ, कम्युनिकेट करना बहुत डिफरेंट हुँ, होता है। मेरे ख्याल से शायद सब माँ बाप को शायद अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। बच्चा आपको नहीं बोलेगा वर्बली कि मैं सुसाइड हुँ, करूंगा। मैं यंगर एज की बात कर रहा हूँ, हुँ, में भी लेस देन 15, जो शायद नहीं बोलेंगे। हुँ, उनके अंदर आप डिफरेंट चीजें देखोगे, पंचिंग, मतलब मल्टीपल थिंग्स, तोड़ हुँ, फोड़ करना आसपास की सराउंडिंग्स में। हुँ, उनकी आप एक एक चीज देखोगे, वो कपड़े निकालना, वो गुस्सा हुँ, जो है वलवला है, वो कहीं से भी काटने शुरू कर देते हैं। जो मैंने ऑब्जर्व किया है चाइल्ड साइकोलॉजी में देखता हूँ। दूसरा ये कि खिड़कियों से हमेशा मेजरमेंट करना, बोलना कि ये कितना गहरा होगा। हुँ, ये मैं आपको अपने लोकल टाउन की बात बोल रहा हूँ। हुँ, आग से आदमी जलता भी है, तो आपको हुँ, कम्युनिकेट करेगा थोड़ा हल्का सा खेलते खेलते, जो आपको लगेगा ये नॉर्मल हुँ, पूछने, शायद क्यूरियोसिटी के हिसाब से पूछ रहा है। हुँ, और वो क्यूरियोसिटी शायद आपको कहीं ना कहीं उसके निकाह आप क्यों पूछ रहे हो, या डिफरेंट हुँ, तरीका जो हम माँ बाप को हुँ, सिखाते हैं पूछने के लिए, ताकि हुँ, वो पूछ लेते हैं। वो गैस का पूछेंगे, लीक कैसे खुलता है। हुँ, मैंने फीमेल्स में देखा है, कश्मीर में अगर आप देखोगे, फीमेल्स का यहाँ पे फायर फायर अपने ऊपर आग लगाना इज अ वेरी कॉमन थिंग हुँ, आफ्टर पॉइजनस जो चीजें खाना। जो हुँ, पॉइजनस के बारे में उनको हमेशा बोलते थे आदमी मरता भी है क्या। हुँ, तो वो जो क्यूरियोसिटी है चीजों को, वो शायद कहीं ना कहीं माँ बाप को समझना चाहिए। अगर और ऊपर से उसको उसको उसके सेकंड पॉइंट होगा गुस्सा। हुँ, वो बहुत तेज गुस्सा करता है। जो हुँ, गुस्सा करने वाला होगा, या इम्पल्स जो आपके बच्चा होगा, या बहुत सेंसिटिव नेचर का होगा। लाइक हुँ, आपके माँ बाप के बीच में जो भी हल्का सा झगड़ा दिखता है, या फैमिली के बीच में हुँ, जो भी झगड़ा दिखता है, वो फिर बाद में क्लियर करने की कोशिश करता है। मैं इसको हुँ, बीच में मेरे को मन करता है मैं इसको मार दूं। हुँ, तो वो जो एग्रेशन है वो डिफरेंट तरीकों से वो शो करना शुरू कर देता है। शायद वो एक इम्पोर्टेंट वे होगा बच्चों को शायद सुसाइड के बारे में आप हुँ, अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरा, उनके साथ जो अटैचमेंट चीजें होती है ना, हुँ, लाइक अगर सेंसिटिव नेचर का, जैसे मैंने कहा। सेकंड, मैंने हुँ, आपको बोला कि बहुत गुस्सा है। थर्ड, मैंने बोला कि जो एक्सट्रीम म्यूट वाले बच्चे हैं, राइट, जो हुँ, हुँ, तन्हाई में प्रेफरेबल है। हुँ, तो हुँ, हुँ, शायद वो कहीं ना कहीं एक मेजर सिम्टम हो सकता है यंग हुँ, एज बच्चों में। जब हुँ, बड़ों की बात आते हैं, तो उनका जो मेजरमेंट लेवल है चेक करने का, ये कितना ऊंचा हुँ, हो सकता है, ये बेड कितना ऊंचा है, ये पंखा कितना ऊंचा है, स्लीप हुँ, कितनी ऊंची है। हुँ, हुँ, तो या एक दो बार वो मतलब बॉर्डर लाइन फीचर जो हम बोलते हैं, कट मार देना, वो हुँ, मैं नहीं मानता हूँ कि वो हमेशा बॉर्डर लाइन जो अटेम्प्ट हुँ, होते हैं वो सुसाइडल हुँ, होते हैं। बट मैं एज ए हुँ, क्लिनिकल ट्रायल ऑफ व्यू से बोलूंगा, पर हमेशा वो लाइटली भी नहीं लेना चाहिए। तो हुँ, हम हुँ, बोलेंगे कि हर कोई बॉर्डर लाइन सुसाइड नहीं कर सकता है। हुँ, तो हुँ, दूसरा पॉइंट हो गया कि वो जंप मारना, वो हुँ, लटकाना अपने आप को, जो हैंगिंग सिस्टम होता है उसको हुँ, मेजरमेंट हुँ, करते हैं बच्चे लोग। हुँ, हुँ, फोर्थ हुँ, है कि एडिक्शन वाला एरिया जो है ना, आंखें लाल होना, लेट घर को आ जाना, हुँ, फोन पे ही चिपके रहना, या बेड के अंदर ही, बिस्तर के अंदर ही फोन रखना। या हुँ, मैं इवन ये भी देख रहा हूँ, लेटेस्टली एक हमारे पास शायद था, वो पबजी जो हुँ, इन्फ्लुएंस हुआ था उसके ऊपर, इसका हुँ, लिंक था उसके ऊपर कि मुझे जो गाड़ी नहीं मिली इतना लेवल हुँ, क्रॉस करने के बाद, तो मैं हुँ, खुदकुशी करने का अटेम्प्ट करूंगा। बीच में एक वो हुँ, जो केस, अब ब्लू एक गेम आया था, ब्लू वेल भी ब्लू टाइप, व्हेल, हुँ, 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 हाँ। तो वो शायद मैंने 2-3 केस ऐसे देखे जब वो चल रहा था। ये हुँ, पिछले साल या पिछले साल की बात है, 2 हुँ, साल पहले की बात है। तो हुँ, मैं हुँ, ओवरऑल पिक्चर बता रहा हूँ कि जब भी ऐसी-ऐसी गेम्स आप अपने बच्चों को देख सकते हो, तो हुँ, शायद उनके ये वाले फीचर्स आपको बहुत हायर साइड में दिख सकते हैं। हुँ। बिल्कुल सर। तो यहाँ पे एक और वैसे कई क्वेश्चन्स आ रहे हैं चैट बॉक्स में, तो हम 5 मिनट के बाद में मैं लास्ट क्वेश्चन कर रही हूँ सर से, फिर उसके बाद में हाउस विल बी ओपन फॉर द ओपन डिस्कशन। ऑल द ऑडियंस कैन जॉइन, दे कैन शेयर देयर व्यू पॉइंट्स, दे कैन शेयर देयर फीडबैक। अगर आपके कोई क्वेश्चन है, इवन यू आर ओपन टू आंसर, अगर आपको लगता है कि आप कोई क्वेश्चन का आंसर करना चाहते हैं। सर, अब बात आती है साइकोथेरेपी टेक्निक्स की, बिकॉज़ व्हेन वी टॉक अबाउट लाइक क्लिनिकल पर्सपेक्टिव, तो अब अगर उन्होंने पहचान लिया और अगर वो आते हैं, तो क्या ऐसी टेक्निक्स हैं जिससे वो हैंडल कर सकते हैं? दीज़ आर द साइन्स व्हिच वी डिस्कस राइट नाउ। अब आगे क्या ऐसी जी। टेक्निक्स हैं जो घर पे हैंडल की जा सकती हैं या किसी प्रोफेशनल की हेल्प से हैंडल की जा सकती है, स्पेशली बच्चों मैं के केसेस में?
मैं शायद क्योंकि फेसबुक लाइव है अपने जो हमारे हाँ। यहाँ साइकियाट्रिस्ट है, अगर आप देखेंगे यहाँ जो, मुझे नहीं पता दिल्ली में कितना चेंज हुआ है, मैं 4 साल पहले या 5 साल पहले दिल्ली छोड़ा हुआ हूँ, लेकिन प्रेफरेबल लोग करते हैं कि सबसे पहले क्लिनिकल ये ना साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं. दिस इज अ कॉमन थिंग दैट वी आर सीन एज अ प्रोफेशनल. अल्टीमेटली वो दवाई देते तो सबसाइड हो जाता है कुछ टाइम के लिए, लेकिन अगर आप देखेंगे लेटेस्ट केसेस जो डिप्रेशन के होते हैं ना, उनको आप दवाई देते तो वो सुसाइड कर ही लेते हैं. मतलब मेरा राइट. पर्सनली भी ये मानना है, नॉट बिकॉज कि मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन मेरा पर्सनली भी मानना है कि दवाई किसी भी चीज का परमानेंट इलाज नहीं है. वो जब तक आप जड़ में जाके उसको ठीक नहीं करेंगे वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है. मैं नहीं, ये तो बिगर टर्म से आप बोल रहे हो, पर मैं सोसाइटी अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देख लूं तो मैंने बहुत सारे हमारे कुलीग साइकियाट्रिस्ट है जो शायद बिलीव करते हैं कि शायद इसमें आपकी जरूरत है. तो सबसे पहले हम लोग उन्हें समझे, उनकी प्रॉब्लम्स को अपना प्रॉब्लम समझे. आई बिलीव ऑन ह्यूमनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, सर एक बार हम देख लेते हैं. देन साइकोलॉजिस्ट कैन गो टू द डीपर रूट्स कि कोई और इश्यूज तो नहीं है. लाइक उसमें मल्टीपल चीजें आती है, उसमें आप कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी या ट्रॉमेटिक थेरेपी जो आप यूज करते हो. फिर डिपेंड करता है कि आप कौन से स्कूल पे थॉट पे बिलीव करते हो. आई सीरियसली बिलीव दैट द सीबीटी डज वर्क. I have seen people responding very good on the basis of CBT, but I don't want to say now कि नहीं वो कुछ नहीं होता CBT. This may be the जो मेरे दोस्त सुन रहे हैं या देख रहे हैं, बट हकीकत ये है कि उस क्लाइंट के जो सिम्टोमोलॉजीज हैं उनको अगर आप डिफरेंट मेथड से भी यूज करना चाहोगे, बी साइकोलॉजिक पॉइंट ऑफ व्यू, ह्यूमनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, बी जेस्टल पॉइंट ऑफ व्यू, पर हमें उनमें इम्प्रूवमेंट्स ही लानी है. फाइन. अल्टीमेटली शायद वो हमारा एक एथलेटिक मेथड बनता है, यूज करते हैं, जो हम मल्टीपल रीजन को ढूंढने में शायद टाइम लगता है. जो माँ बाप देख रहे हैं, मैं नहीं मानता हूँ कि हमें बस एक बार मिल लिया हमारे पास आके ठीक हो गया. उसमें जो उसके इश्यूज है, उसका गुस्सा है. जैसे मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ एक्सपीरियंस बता दूं, जैसे हम लोग पेशेंट देखते हैं ना, देखते देखते मैक्सिमम केसेस के साथ जो अटेम्प्ट्स वाले होते हैं ना, तो वो मैक्सिमम टाइम मैंने देखा कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर से होता है. मैक्सिमम टाइम मैं आपको कश्मीर पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं, शायद अभी हमारा कोई भी सर्वे यहाँ पे नहीं हुआ पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स को लेके, मगर मेरे ख्याल बहुत ह्यूज है और मेरे कोलीग्स भी मानते हैं कि यहाँ पे पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स बहुत ह्यूज है. बीट वो शायद हुआ है जो हमारे तक अभी तक हमारे जो अनकॉन्शियस विशेष मिलिटेंसी को लेके या इंसर्जेंसी को लेके रहा है, वो हमें वलवला जो हमारे पर्सनल नफ्स वैसा ही कश्मीर में बना है. मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ. और अगर हम ओवरऑल देखेंगे पिक्चर, तो शायद वो जो रूट कॉज है ना, वो ढूंढने में शायद हमें थोड़ा टाइम लगता है. पर यूजुअली वो लोग, मेरे हिसाब से पर्सनली, बाय गिविंग पर्सनल फीडबैक, आई हैव सीन पीपल इंप्रूविंग क्वाइट अ लॉट टाइम विद द थेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस. ओके सर, बिल्कुल. तो अब आई थिंक चैट बॉक्स ओपन करने का टाइम है. बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे कमेंट्स आए हुए हैं. वन इज, सर आई थिंक आपसे क्वेश्चन है सदाकत रहमान से. मुदस्सिर सर, वी आर हैविंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इनसिक्योरिटीज देयर. पीपल हैव स्टार्टेड ड्रग्स. अनएम्प्लॉयमेंट इज मेन रीजन फॉर सुसाइड. ये मैम हमारी मैम, she is our head department of psychiatry and psychiatry. Ma'am, you can unmute yourself and you can come on the video. Ma'am is very senior to all of us, and we are students actually. जी, she is सदाकत मैम हेड है, क्लिनिकल साइकोलॉजी को हैंडल करती है डिपार्टमेंट में, साइकियाट्री इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल न्यूरोसाइंस में. मैम, we would request you to please unmute and please on your video. Yeah, I'm Sadakat. This is my pleasure that Mudassir is talking about suicide. He has worked a lot under me as well as under everybody. So he has been in Delhi. He has seen lots of things. He has a lot of exposure, like working in Delhi, working in Kashmir. Now he has been posted to Anantnag Medical College as Alhamdulillah assistant professor. And like he's very good in doing work, lot of work with the NGOs, with everything. But like as a point of view and having experience of 27 years in this field, I'm saying that like I have seen lots of patients, they have, mostly in Kashmir, we have a parasuicide. And like why we have started this suicide in Kashmir, because like and insecurity is too much there. Like people are overstressed, and
like the parental and self-confidence among the children, between the relationship between the parent and children are very different. It has not like in the initial stage, like we have a culturally, we are totally different than the other people. But like now the trend has become like this, they don't listen to the parents, and the parents also doesn't have that much of patience to listen. Like the relationship has been totally different. So I think the gap between the parental attitude and the children have they make them to do suicide because expectations are too much. And like personally seeing the patients, usually there is a conflict between the parental relationship or the expectations too much high. That's why we have lots of suicides in Kashmir. Yes, ma'am. Thank you so much for sharing your point of view, because Thank you so definitely much. we need more people. Even you all can share your views, your points here with us, because this is like open discussion now. So I'm seeing there is one more question. What does suicide contagion mean, and what can be done to prevent it? Sir, this is the question for you from Rain. Hello, Mudassir sir, are you there? Thank you. Yeah, I mute किया Yes, था. sir. Acha, हाँ. Before There is going a question. Yeah. I heard it actually. Before going to the answer, actually, I will Mhm. tell you, Sadakat ma'am has been a very, very a mother-like figure to me. I have worked under her, and she is doing department of this department. The way I work basically there is one of the only department which has started working on the society part. Fine. उनको शायद डिपार्टमेंट में काम दिया गया है, because I recently heard that government is taking this particular point in Kashmir very seriously, Jammu and Kashmir very seriously. That governor has taken this thing very seriously. Why society is increasing the number, and Institute of Mental Neuroscience has given the work actually to look into the matter, and the Department of Clinical Psychology plus Department of Psychiatry, including all the whole team, is going to start basically looking at go for the numbers जो लोगों को दिया जा सकता है. तो मैं ये बोल रहा था कि गवर्नमेंट हैज टेकन दिस वेरी सीरियसली, एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल न्यूरोसाइंस is taken very seriously an initiation. They have given all the numbers of all the faculty members, and if they personally ask me to give the number in the platform, we can discuss it later on. I can give you the number, and if you have a calls and questions, if people want to ask me, they can send me the message. I will answer every question of them actually. Sure, sir. Thank you so much for your time. So as we are running short of the time, sir need to join another meeting. So I would request everyone, Ashok, you can come and join us. Please unmute yourself and come on the video. Dr. Ashok is here. Ashok, He is All India Council member from Indian Association of Clinical Psychologists. We are privileged to have him. गुड इवनिंग सर एंड गुड इवनिंग मैम. Hi. एक्चुअली सर ने बताया कि वहां पर सुसाइडल रेट इस तरीके से बूम किया है, मैं तो कहूंगा कि ब्लास्ट किया है, फ्रॉम 0.5 to 47 is a huge no, 0.5 to 26. 26%. 26. Okay. This is from Anyway, if it is 26, so जहाँ वो 1% भी नहीं था और वो अचानक से 26 पहुंच गया है, तो मैं समझ पा रहा था सर, जैसा आप भी मान रहे थे कि ये सिचुएशनल है ना, ड्यूरिंग पैंडेमिक ऐसा हुआ है. तो सर मुझे आपसे ये जानना था कि आपको क्या लगता है कि इसमें गवर्नमेंट का और सोसाइटी का, लोकल जो पॉपुलेशन है उनका, वहाँ पे इस सुसाइड को प्रिवेंट करने में उनका क्या रोल हो सकता है, और वो लोग किस तरीके का मेजर्स ले रहे हैं? जी, thank you dear. I mean, good to see you back actually, quite a long time. Nice to see you sir. ठीक है, the basic answer basically this is that I said कि psychiatric illnesses is basically increased for a long period of time. ये जो traumatic experience जो Kashmiri people are saying for a long time,
इसका साइकेट्रिक इलनेस का एक लेवल ऑफ इंक्रीज बहुत हाई है. I said 46% was reported as a probable depression. I cannot say the depression. The word written is probable depression. Exactly. Fine. So obviously आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, हम सब जो साइकोलॉजी पढ़ते हैं वो ये अंडरस्टैंड करते हैं जब भी डिप्रेशन एक लेवल तक आ जाता है तो जब हम फिर एंटी डिप्रेशन खाते हैं हमारे अंदर ताकत आ जाती है, हम तो सुसाइड करते हैं. तो वो रीजन अभी जो हमारे पास डाटा जो मैंने बोला 26% है, ये हम कंपेयर कर रहे हैं द अर्ली स्टेज. ये इट्स नॉट अ डाटा दैट वी हैव इन हैंड. Maybe we in psychiatry or we in psychology need to go for a good research जहाँ पे हम शायद अंडरस्टैंड कर सकें कि जो ये सुसाइड कर चुके हैं, अटेम्प्ट्स हो रहे हैं, उनके पीछे जो परसेंटेज है वो कितना है एग्जैक्ट हमारे पास अभी नहीं है. लेकिन जो ये मीडिया रिपोर्ट्स प्लस जो पुलिस डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस का रिपोर्ट है ना, उसके बेस पर हम कंपेयर करते हैं 1% से रेंज हुआ है 26%. तो मैं मानता हूँ कि जी, और मैं मानता हूँ इसमें शायद एक चीज हम मिस कर गए इन बिटवीन जो कि नेटवर्क से शायद खो गया था. वो ये है कि कश्मीर का जो सुसाइड है ना, इसमें सिर्फ कश्मीरी पीपल इंक्लूड नहीं किया जा सकता है, इसमें पैरामिलिट्री फोर्स भी इंक्लूड किया जा रहा है. जी सर. और मतलब अगर आप ऑन एंड ऑन देखेंगे कश्मीर में जो Again the technical glitch. Sir, unmute yourself. We lost him, ma'am. Yes. Connection Sir, error. Sir, unmute yourself. I can see your video. Please unmute. Yeah, please unmute. आपके एडमिट बीच में ना वो म्यूट अनम्यूट हो जाता है तो वो कोई बात नहीं सर. जी. थैंक यू दिव्या. The point is basically now we need to understand जो आर्मी पैरामिलिट्री फोर्स का जो हमारे पास डाटा है ना, वो हमारे पास अभी इन हैंड नहीं है, पर हर दिन डे ऑफ हम वो भी कंसिडर कर रहे हैं कश्मीर पॉपुलेशन में. वो अलग से हम नहीं रख रहे हैं. हम जो भी सोसाइटी यहाँ पे देखते हैं ना हॉस्पिटल सेटिंग्स में, वो सारा मिला के आप देखेंगे वो पैरामिलिट्री फोर्स या आर्मी फोर्स को मिला के हो रहा है. नाउ मे बी अगर हम वो कम कर दे तो तब भी 25-24 के आसपास पहुंच सकता है अगर हम डाटा को अच्छे से एनालाइज करने की कोशिश करेंगे. जितना मैं रिसर्च जानता हूँ कि हेलो. हाँ सर. राइट सर. हेलो. Yes, sir. I'm really sorry. This is too you नहीं sir, please don't say sorry. नहीं sir, it's a technical issue sir. It's a technical issue. Please request government to do this. Now the point is now the point Ashok is yes, society is understanding. मैंने शायद बीच में मैं अनम्यूट हो गया था. I was saying that कि government has taken now this very seriously. I mean the new governor and जो इससे पहले भी गवर्नर थे शायद गवर्नमेंट फंक्शन इज है. मैंने को एक दो पर्सनली मुझे इनवाइट नहीं किया गया था, बट पीपल वर कॉल्ड टू लुक इनटू द मैटर. दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री जो हमारा मेन हेड इंस्टीट्यूट है पूरे जम्मू कश्मीर को देखता है. वहाँ जीएमसी श्रीनगर है यहाँ पे कश्मीर में, और वहाँ पे जीएमसी जम्मू है. तो इनको बुलाया गया है एंड दे हैव बीन टोल्ड कि आप इसमें शायद अच्छा खासा डाटा देख ले और देख ले रीजंस क्या हो रहे हैं. नाउ अगर आप मुझे सोसाइटी का बोल रहे हैं, मैंने इससे पहले भी श्वेता को बोला था कि बहुत सारे एनजीओ नाउ इसको बहुत सीरियसली टेकअप कर रहे हैं, और हम भी इसमें वर्कशॉप या लोगों से जैसे आपके पास आया आज, इसके बाद किसी और को टाइम दिया हुआ, तो वी आर डिस्कसिंग इट. जी सर, तो थैंक यू सो मच. आई नो right, you sir. are So running you out mean of to time. say sir कि there is a need of awareness very first, right? Then I think sir the lost whole the connection population of again. Kashmir, clinicians, bureaucrats, and the politician can make some kind of actually. I'm making a conclusion like there is a need of some special policy for particular Jammu and Kashmir region to prevent this kind of Definitely different suicide. population, different resources, different challenges. So we need Exactly. policies That's as why per the ma'am I specialization. thought Yeah. कि it should be. अगर सर हैं तो एक और चीज मुझे सबसे सर जाननी थी. नहीं है शायद, सर नहीं है, सर नहीं सेशन है. लाइव कनेक्शन चलिए चला ठीक गया, है. but we are very happy to have him as a guest speaker. All the network issues were there, all the things were there, but still he managed to be with us for half an hour, and we are grateful for him.
So now I'm opening the house for the discussion. So you all can come, unmute and raise your hand who want to speak on this topic. Even if anyone from you, कभी ऐसा पल कुछ ना कुछ आता है कि जब हमने शायद ये सोचा होता है कि मैं गिव अप कर जाऊंगा, या वो थॉट जो एक सुसाइड को लेके थॉट आया, या कई बार हो सकता है किसी ने अटेम्प्ट भी किया, सेल्फ हार्म भी किया इस इंटेंशन के साथ में। अगर वो अपना कोई भी एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, दे कैन शेयर। आप अपना वीडियो ऑफ रख सकते हैं, वी विल नॉट रिकॉल योर नेम, नथिंग, बट प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट यू कि प्लीज शो दैट करेज। बात करने से बहुत सी बातों का सोल्यूशन निकलता है, और बात करना प्रिवेंशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप में से कोई भी अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो प्लीज बता सकते हैं, और एनी पॉइंट यू वुड लाइक टू ऐड। एनीवन फ्रॉम द ऑडियंस? Questions, I think we covered all the questions. If any question Right, left, ma'am. please let us know. All the questions covered in the discussion. Is there any other question left? As a student of basic clinical psychology, I often find that parents have a negative approach towards mental health. Very true, Fahim. They do not understand. Yes, it's true. Fahim, you can come and you can unmute yourself. You can express your views. This platform is for all of you right now. Yes, Shireen, please tell me. You can unmute. Sir, I. Ma'am, Shireen. Okay. Yeah, Shireen, yeah. So, ma'am, actually, I am like a second year student of BSc Clinical Psychology, and I would like to share that over here, being in India, when I am into this field, I have noticed that parents often hold up that resentment, that they have this one statement that you can go और अपने बुआ से बात कर लो, ताया से बात कर लो, क्यों जाके किसी को फजूल के पैसे दे रहे हो, जाके बस बात ही तो करनी है. They are not going to give you medicines, they are not going to treat you, and they take mental health quite lightly. They do not understand that there is something called emotional abuse, there is something called mental abuse, and it quite comes out to the term that if you're suiciding, you're someone who is coward. But they do not, they do not understand that, someone who is mentally ill, obviously near the edge, will not understand what are they supposed to do. They are already helpless, they're trying to seek help, and when we are looking down on people who seek mental help, then obviously they are also hesitating. I see so many people around me, ma'am. I would like to share an experience. Yeah, definitely. Please go ahead. Okay, so in my friend circle, I have managed to save 2 to 3 people from suiciding at least twice. Like, that's really appreciable. Very good. Ma'am, the basic thing is that एक ही चीज है कि they wanted someone to be there for them. Like, they were slitting their wrists and they had self-harm. So what others did is they started secluding them. मतलब, इसको छोड़ दो kind of a thing. Because once the self-harm signs were significant, people think that, बस drama कर रहे attention के लिए, and you just leave them, ignore them for a while. So during this thing, I kind of, I tried to be very cautious. And since I have been learning since like 11th, I am learning psychology. So I was able to, just talk to them gently and try to assure them that, you just tell me what's wrong. Or I used to talk to them for hours, and I noticed that she was holding that blade and she was cutting herself while talking to me. And I had to make sure that I don't panic. Because the thing is that her parents are very abusive. And it's like, maar denge, but they have this thing that, kuch nahi hai, matlab aise hi nakhre kar rahi hai. So she was locked. She had locked herself up in a room, and she was just talking to me, and I was like, what are you doing? So she was like just slitting my wrist. I'm like, what's wrong? So can we talk about it? So I didn't tell her that what she's doing is wrong, or I didn't tell her कि बंद कर दो, because she was saying कि you will say the same thing. So I was like, ऐसा कुछ नहीं है. Can we just talk for a while? And I first I started telling her that, all right, what are you doing? And then slowly I distracted her enough and requested her. Then she kept the blade aside, and then she was talking. Then she actually broke down. She started talking about how all that, I recognize it as childhood trauma, because whatever she's going through currently, and she's in the same abusive and toxic environment till now. And she cried a lot. And ma'am, was very depressed. Like, she had gone into that level of depression
wherein she didn't used to eat, she didn't used to do anything, and her parents still, they still did not take her to any psychologist, any psychiatrist. They were like, "Fir bhi nakhre kar degi." So, and being in India, you know, things are very opposite over here, because anyone who seeks mental health is pagal, and agar aap psychologist ke paas ja rahe ho to matlab aap pagal ho, and it's like that perspective. So she got neglected, and even her friends, they started picking on her insecurities. So like I kind of introduced like a few exercises or a few normal things which was taught to us by like psychologists who are our mentors. Like wo first stage jo hota hai type of things, like by the help of that, slowly I managed to pull her out, and today she still has severe anxiety, she gets panic attack. But the thing is that I told her, why don't you consult a psychologist, it will be really helpful for you. But एक तो वो चीज है कि उसको स्टिग्मा है, and दूसरा is like because of her parents' constant, you know, harsh behavior towards her, she has this negative perspective that, you know, what will therapy even do to me, or what will a psychologist even do to me? सब लोग ऐसे ही मुझे पागल बोलते हैं, मुझे नहीं जानते. So even today, if anything happens, she comes up to me or she tries to talk to me. So that is one way where I've tried, and slowly I'm just, you know, like maybe daily 5 minutes of meditation or self-affirmations or positive thoughts, and slowly she's trying to accept those things. But ma'am, मुझे उसको उस चीज से निकालने के लिए almost 2 से 3 साल लग गए, just to make sure that she's but not at doing it. least you saved a life, which is more important. Time लगता है, but healing is possible. चाहे कई बार Yes, 2 ma'am. महीने लगते हैं, कई बार 2 से 3 साल लगते हैं, and you beautifully shared all the techniques which we all can use in our practice or with our friends. But yeah, definitely there is one thing is very important. Professional help is something, जैसे कहा ना कि बुआ से बात कर लो, ताऊ से बात कर लो, या घर में किसी से भी बात कर लो, दे कुड बी योर इमोशनल सपोर्ट, बट वो आपको वेज नहीं बताएंगे आपकी प्रॉब्लम से लड़ने के लिए. वहां पे आपको प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है. एंड डेफिनेटली पेरेंट्स को ये समझना जरूरी है कि मेंटल हेल्थ भी इम्पोर्टेंस रखती है जितना कि फिजिकल हेल्थ रखती है, और उसके ऊपर ओपन जितना होंगे उतना ज्यादा प्रिवेंटेबल ये हो सकता है. थैंक यू सो मच हाँ, शेरिंग फॉर बिल्कुल. मैं शेयरिंग. यहाँ पर एक चीज ये कहना चाहूंगा, जैसे उनके पेरेंट्स ने ये कहा था कि बुआ से बात कर लो, चाचा से, ताऊ से, जिनसे भी बात करना है बात कर लो. एक्चुअल में जो फैमिलीज का सिनारियो पहले था और अभी में मेजर चेंजेस आ रहे हैं. दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है और साथ के साथ मोर मटेरियलिस्टिक हो गई है ना. तो पहली बात तो उनको जो मेंटल हेल्थ की सीवियरिटी है वो उनको उनकी समझ नहीं थी. दूसरी बात, वो अपने पुराने ख्यालों के साथ सोच रहे थे. लेकिन आजकल रिश्ते भी वो वाले रिश्ते शायद टाइम लोगों के पास नहीं है, या फिर लोग इतने ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो जा रहे हैं इस वजह से, या फिर लोग ज़्यादा एम्बिशियस होते जा रहे हैं इस वजह से कि लोग अपने तक ही सीमित करके रखना चाह रहे हैं. तो रिश्तों में भी बदलाव आया है. हालांकि जैसा आप कह रहे थे कि इंडिया में इस तरीके की बातें, तो हमारा जो फैमिली सिस्टम था वो दुनिया में सबसे मजबूत था. आज दूसरे लोग इंडियन फैमिली सिस्टम को अपने यहाँ ले जा करके उसको लागू कर रहे हैं, और फैमिली सिस्टम, फैमिली कस्टम वो बना रहे हैं, फैमिली रिचुअल्स उनके यहाँ हो रहे हैं. और हम तो उनसे दूर हमारा होते सिस्टम जा रहे इतना हैं, भी बुरा नहीं है. और हम ठीक दूर है, होते जा लेकिन रहे हाँ, हैं. डेफिनेटली हाँ, हम उनकी तरफ मुड़ते जा रहे हैं. तो आपने जो चीजें शेयर किया वो बहुत ही अच्छा था, लाजवाब था. इसी तरीके से आपने तो काफी टेक्निकली उसको हैंडल किया. लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब भी हम आज से करीब 12 साल पहले की बात होगी, जब आई वाज मास्टर्स स्टूडेंट, तो मेरा एक फ्रेंड था, वो ऐसे जादू टोना करता था ना, जादू टोना ऐसे झाड़ फूक ऐसा करता था. तो ही वाज अ साइकोलॉजी स्टूडेंट. तो उसने एक लाइफ सेविंग करी थी. वो जौनपुर टू इलाहाबाद वो जर्नी कर रहा था. तो लोकल ट्रेन से वहाँ पे एक ब्रिज है उसमें गंगा पे. तो एक बच्चा था, वो उसमें जंप करने के लिए वो कोशिश किया. तो वो लड़का पकड़ करके जो मेरा फ्रेंड था उसको लेकर के अपने घर पे आया. उसने उसको अपने घर पे रख करके हेल्प करी.
फिर पूरे डिपार्टमेंट के स्टूडेंट ने उसको मिल करके इतना बनाया, उसको इतना बनाया। पहले तो हम लोग उसको मिलने गए तो बोले, तो वो मिलने नहीं देता था क्योंकि वो लड़का भी बहुत शाई था। फिर बाद में धीरे धीरे कई बार जब उनसे मिलने के लिए गए तो वो खुल गया, ओपन हुआ, और आज की डेट में वो एथलीट है। हम लोगों ने उसको इतना मोटिवेट किया, हमने कहा अगर तुम मरना ही चाह रहे हो तो कुछ करके मर जाओ। तो वो बोला कम से कम लोग नाम याद रखेंगे आपका। हाँ, खेल तू कुछ नहीं कर सकता, मैं बस खेल सकता हूँ। तो वो 10वीं तक पढ़ा था उस टाइम पे। फिर हम लोगों के पास एटीएम कार्ड और ये सब नहीं हुआ करते थे, बच्चे थे छोटे। तो फिर हम लोगों ने दूसरों को पैसे डिपॉजिट करके उसका एटीएम कार्ड यूज करके तो इलाहाबाद मैराथन का फॉर्म डाला। तो उसमें उसने खेला, उसका बहुत पुअर गया। फिर दिल्ली मैराथन करा उसने, तो दिल्ली मैराथन में उसका 19th या 20th प्लेस उसको मिला। फिर स्टेडियम यहाँ पे जौनपुर स्टेडियम ने ले लिया। तो कुछ कई बार ऐसा होता है कि लोग आप फ्रेंड की सपोर्ट करते हैं या जाने अनजाने लोगों की भी सपोर्ट करते हैं, टेक्निकली नहीं भी होते हैं। जैसे मैं मानता हूँ कि वो टेक्निकली नहीं साउंड था उस टाइम पे, वो जादू टोना करता था, लेकिन उसने एक बहुत अच्छा काम किया। तो हर आदमी के अंदर एक साइकोलॉजिस्ट होता है, एक क्लिनिशियन होता है, लोगों को उसको जिंदा रखना चाहिए, और जब भी मौका आए आपके पास तो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब इनिशियल हेल्प करके आप और डेफिनेटली एक्ट दे करना चाहिए। सकते हैं, इनिशियल सपोर्ट आप डेफिनेटली दे सकते हैं उनको आगे Right. लीड करने के लिए कि वो कहाँ पे सही रास्ते पे जा सके। तो डेफिनेटली वो तो सभी के अंदर है, और इसीलिए हम कम्युनिटी मेंटल हेल्थ रीच पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि हम बीइंग इन कम्युनिटी, अगर आपके पास में कोई स्पेसिफिक स्किल्स नहीं है, कोई स्पेसिफिक डिग्री नहीं है, बट उसके बाद भी अगर आपके अंदर एम्पैथी है, सो यू कैन सेव मेनी लाइव्स एंड यू कैन प्रिवेंट Exactly. सुसाइड। Okay, so I would request others. Ayushi, you would like to say something? Yes, ma'am. So I Yes, would like Ayushi. to share an experience. Yes, please. So I was doing my internship in Delhi, and I was traveling in Delhi metro. So I overheard one woman who was sitting next to me, and she was talking to someone, and she was saying that I'm just fed up with my life because she was experiencing sexual, emotional, and physical abuse from her husband. And she was talking to some of her relative that I'm thinking of committing suicide. Maybe this will show him that I was of some value to him. So I overheard her, and when she got off her phone, I talked to her for like half or 1 hour, and I asked her just simple questions like, is this the last option? Why do you want to commit suicide to show somebody something? Is it worth doing? So just simple things. So ma'am, just like you said कि बात करने से ही प्रिवेंशन होगा, बात करने से बहुत बार चीजें हल्की हो जाती हैं और बहुत सारी चीजों का सोल्यूशन निकलता है. So ma'am, I totally agree with this because somebody was thinking of committing suicide the next day, and I just had conversation for like half an hour with some simple conversation. So ma'am, yes, it is preventable. Definitely, it is preventable and we need to be like more active as you did. कई बार हम ये भी सोचते हैं कि यार ये अनजान है, मुझे इससे क्या करना, ये मेरा ना दोस्त है ना मेरा रिश्तेदार है, मैं तो जानती भी नहीं हूँ, मुझे उनके मामलों में नहीं पढ़ना चाहिए। आजकल हमें ये भी सिखाया जाता है कि आपको दूसरों के मामलों में पढ़ने की जरूरत नहीं है, और इसलिए कई बार हम ऐसे जितने रेड फ्लैग्स हमें दिखाई देते हैं, जैसे यहाँ पे एक रेड फ्लैग था जिस पर तुमने ध्यान दिया, कई बार हम लोग देखते हुए भी अवॉइड कर देते हैं। तो प्लीज यहाँ पे जब बात सुसाइड की आती है, किसी की जान की, किसी की जिंदगी की आती है, तो वहां पे वो रिश्ता अपने आप बन जाता है, वो एम्पैथी का रिश्ता, और वहां पे हमें इंसानियत के नाते एक्ट करना है, ना कि इसलिए एक्ट करना है कि वो मेरा रिश्तेदार या वो मेरा दोस्त या वो मेरा किसी रिश्ते में है। इस सब चीजों को छोड़ते हुए आपको इंसानियत के नाते उसको हेल्प करना है। Anyone else would like to share this? Thank you so much, Ayushi, for sharing your experience with us. मैम, ये चीज आपने बिल्कुल सही कही कि हम लोग आजकल ये भी सोचते हैं कि फालतू में कौन इन मामलों में पड़ेगा। सो मेरे 2 फ्रेंड्स भी मेरे साथ थे और उन्होंने मुझे सेम चीज कही थी। इवन दे आर साइकोलॉजी स्टूडेंट्स, सो दे सेड द सेम थिंग टू मी।
तो ये मेरे साथ काफी लोग मुझे ये बोल के जाते हैं कि तुम्हें नेतागिरी करने का बहुत शौक है। ये मैंने कॉलेज टाइम से लेकर अभी तक काफी सुना है। बट हाँ, मुझे अगर इस वे में आप नेतागिरी बोले, उसे कुछ भी बोले, इफ आई कैन हेल्प समवन, सो आई वुड रिक्वेस्ट कि हम सभी लोग किसी ना किसी वे में किसी के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, और उसके बाद में वो रिश्ता अपने आप ही बन जाता है। रिश्ते सिर्फ आपके ब्लड रिलेशनशिप नहीं होते हैं, आपको ये जो रिश्ते मिलते हैं वो आपको लाइफ टाइम के लिए मिलते हैं। तो वो ह्यूमैनिटी का रिलेशनशिप निभाना Yeah, शुरू कीजिए, exactly. वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। Definitely. Anyone else would like to share anything with us, or we can close the session? I think we discussed. Okay, guys, thank you so much everyone for हाँ your बिल्कुल। सो valuable आज का time. टेक, हाँ बोलो अशोक, बोलो प्लीज। हाँ हेलो। आज का टेक होम मैसेज है कि बात करने से बात बात होती है। बनती इवन है। हमारे पुराने लिटरेचर में भी इस तरीके की बातें हैं। मैं आपको एक बहुत ही अच्छा शेर सुनाना चाहूंगा कि बिल्कुल पेश बिल्कुल। जो मसाइल हो गुफ्तगू से हल कर, पेश जो मसाइल हो गुफ्तगू से हल कर लो, दूरियां घटती नहीं है फासले बढ़ाने से। वेरी गुड, तो वाह 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 बात वाह, करने से बिल्कुल। बहुत अच्छी बात बनती है। बात करने से लोगों को बहुत बात करना Shwetal, चाहिए। I just आपने know बहुत ही tomorrow's अच्छा time. इनिशिएटिव लिया है मैम, थैंक यू सो मच फॉर हाँ दिस हाँ प्लीज, इनिशिएटिव एक्चुअली। और आपने थैंक यू लोगों सो को मच। बात करने का एक प्लेटफॉर्म दिया। तो हमारे जो जो कॉमन लोग भी आते हैं इसमें, जो नॉन साइकोलॉजिस्ट है, नॉन टेक्निकल है, जो जो कॉमन पॉपुलेशन है, उनको भी अगर वो लोग कुछ शेयर करना चाहें तो उनको भी अभी मैं चांस किसी की दीजिए। आवाज सुन रही थी बीच में, कोई Yeah, बोलना चाह रहा था। it's me, Sadakat. I'm just telling you, what's tomorrow's time? Ma'am, tomorrow time will be the same, 7:30. Okay, thank you so Okay, much. so we will update. Every event has different time No, as per today I the have not speaker. received any information, so I was thinking how to Ma'am, join. have you registered? Have you registered through the link? Yeah. Okay, so we will check the mail because we are sending emails to you. Yeah, So I you have need. given my mail. You didn't No, receive I any haven't email. received anything. I'll check from my Thank you team, so much. or we Thank will you so much. update on my status as well. Okay, thank you so much. Thank you so much, ma'am, for joining us and giving your valuable feedback for us. Thank you so Thank you much. so much. Yeah. Anyone else would like to share anything? Okay, so guys, please be ready for another 8 events which are coming. So we have different time for tomorrow session. Timing will be 7:30. We will have Dr. Urvashi Datta from Jagran Lake City University, Bhopal. She will share with us what are the signs, what are the prevention steps. So we will update you with the recent link and recent poster. Thank you so much once again, and have a good night. Bye-bye. Okay, Take care. ma'am. Bye bye. Have a good day. Bye.